जिन वेलफेयर मेजर्स का आज ऐलान हुआ वो जम्मू कश्मीर की सबसे गरीब जो तबका है उनके लिए है। ये बुनियाद है। आगे जैसे जैसे हम जाएंगे और हमारी माली हालत बेहतर होती जाएगी, जो सोशल वेलफेयर मेजर्स हमें लेने होंगे उनका दायरा जो है बढ़ता जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं अपनी जगह मुतमैन हूं कि जिन हालात में आज जम्मू कश्मीर है फाइनेंशियली और एक यूटी की सूरत में, ये जम्मू कश्मीर के लिए एक बेहतरीन शुरुआत है और मेरी और मेरे साथियों की, हमारी हुकूमत की लगातार कोशिश रहेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस इलेक्शन में हिस्सा लेने का भरपूर फायदा हासिल हो। तो ये कहते हुए मैं डायरेक्ट इंफॉर्मेशन साहब से कह दूंगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाएं। Thank you, sir. Before opening the floor for the questions, I request all the media persons to kindly introduce yourself and the organization you belong to before asking a question. Also, please keep your questions brief and kindly limit yourself to one question. So, now I open the floor for questions. So, from here, start. Good evening, sir. This is Shruti Smita from Greater Kashmir. Sir, my question is related to what you are in your maiden budget. You are focusing, you are putting more premium on crafts economy, are creating assets in the form of industrial units. Sorry, you'll have to speak a little slowly. I didn't hear you. You are putting more emphasis on. Sir, you are putting more premium on what? Agri economy or crafts economy, are creating assets in the form of industrial units in your major budget. What is your focus? Agri-economic crops. Oh, okay. No, our emphasis is not on one particular sector. Our emphasis is on taking J&K forward in a balanced manner, focusing on asset creation, focusing on improving the economy. In improving the economy, we want to focus on all three sides: the primary sector of the economy, the secondary sector, and the tertiary sector. So that means manufacturing, services. We have looked at all of these. I talked about growing the industrial base of Jammu and Kashmir, starting and expanding our industrial manufacturing areas. I have talked about the startup policy and giving a boost to entrepreneurship. There's also a renewed focus on agriculture and horticulture. Tourism is a major sector of our economy. We are looking to grow tourism arrivals both in Kashmir as well as in Jammu. Horticulture, of course, is an important facet of our economy. So it would be wrong on anybody's part, including mine, to make the case that we are focused purely on one part of the economy. That is on the economic side. On the governance side, as I said, there are initiatives for improved governance, for asset creation, and for improving the social network, the social net that is available to our weakest sections of society. Question from there. I am Anubhav from PTI. Sir, you have showcased a lot more programs in your budget. One important factor that we generally talk about is the agriculture or tourism-based economy of J&K.
but never has the focus gone to the hydropower, which is the biggest economy in terms of, in fact, it can be 20,000 crores economy for J&K. You have spelled the new hydropower policy for this thing. Can you specific about the projects, particularly private projects? Actually, in my budget speech, I've said that we are formulating a new hydropower policy. It is currently at the formulation stage within the power department. And as soon as we have the policy, the framework of the policy is ready. It's just that it has to be added to. Once the policy is ready, it will be put before the people. But the aim of that policy, again, is to focus on both the generation side, so that we have greater generation, and also on the distribution, transmission and distribution side as well. So that the losses that we have in our transmission and distribution system, those are also brought down. Next. हेलो, नमस्कार, विनोद पंडित, मैं गुलिस्तान न्यूज चैनल से। नमस्कार। मैं बजट एक्ट लास्ट पढ़ रहा था, उसको देख करके मुझे लगा कि हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 19% है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसकी वजह क्या है? फ्रीबी या फिर सोशल सिक्योरिटी? एक सवाल ये मेरा। दूसरा, आपका जो सैलरी कंपोनेंट है, वो इस साल कम रखा गया है और पेंशन कंपोनेंट भी कम है। जब सैलरी कंपोनेंट आप कम रखते हैं, इसका मतलब है कि आप रोजगार, सरकारी नौकरी इस साल नहीं दे सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। और साहब, एक सवाल मैं लास्ट में आपसे करना चाहूंगा, लास्ट में एक मौका मुझे दे दीजिएगा। ये 2 सवाल मैंने। चलिए, पहले तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कम नहीं हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप देखें तो 24-25 जो हमारा RE है वो 27,544 है। जो हमारा 25-26 का BE है बजटेड, ये है 32,607। तो इसको बढ़ाने की बात है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कमी हुई है, जिसके लिए फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने आपको पहले ही समझाया है। वो इसलिए है कि हमारी पुलिस की बजट और पुलिस पेंशन जो है वो जम्मू कश्मीर की बजट से हटा के मरकजी होम मिनिस्ट्री की बजट में डाला गया है, इसलिए इसमें कमी आई है इस बार। इस बार जो सैलरी कंपोनेंट है वो कम हो गया है। मैंने कहा कि सैलरी कंपोनेंट कम हो गया है। तो पिछले साल था 27,930 करोड़, अभी आपने जो प्रपोज किया है 23,896 करोड़ है। इट मीन्स कि आप रोजगार नहीं देने वाले हैं या आसामियां जो खाली है नहीं भरने वाले। अब आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए ना। पिछले साल की सैलरी में जो हमारी पुलिस है उनकी सैलरी बिल इसमें शामिल थी। इस साल वो सैलरी पुलिस कंपोनेंट जो है वो हमारे बजट से हटा के मरकजी बजट में डाला गया है, इसलिए वो निकाल के ये नंबर कम हुआ है। एम्प्लॉइज की तादाद कम नहीं हुई, एम्प्लॉइज की तादाद बढ़ेगी, घटेगी नहीं, लेकिन सैलरी कंपोनेंट कम हुआ है क्योंकि वो हिस्सा जो हम पुलिस को तनख्वाह के तौर पे देते थे वो अब हमारे बजट से हटा के मरकज की बजट में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। गुड इवनिंग सर, रोहित शर्मा टेक1 चैनल से। सर, डेली वेजेस के लिए मैं पूछना चाहूंगा, उनका बड़ा लंबे समय से इंतजार था। दरअसल जब यहाँ से बाहर जाएंगे वो हमें पूछेंगे जब हम कल उनके प्रोटेस्ट में उनकी कवरेज करेंगे एसपी उसको लेकर। पिछले दिनों आपके एक ट्विटर हैंडल से पोस्ट भी डाली गई जिसको क्लैरिफिकेशन दी गई, लेकिन सवाल उनका जो है वो आप तक पहुंचाने के लिए वो हमें मीडिएशन चूज करते हैं। क्या कुछ उनके लिए निकल कर आ रहा है? सर, एडिशन करूंगा AA वाइज के लिए जो आपने बजट लाया, नो डाउट बहुत ज्यादा बेनिफिट उनको मिलेगा, बट डोंट यू थिंक सर कि BPLs का जो पैरामीटर सेट किया गया है उनको एक बार फिर से सर्वे करने की जरूरत है, ताकि जो APLs में आज की डेट में फॉल कर रहे हैं वो इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे? मतलब जहां तक डेली वेजर्स और इनकी बात है, उनके लिए एक पॉलिसी हमें बनानी होगी। पहले तो ये है कि हमें उनका नंबर तय करना होगा, क्योंकि आप जिससे बात करें नंबर बदलता रहता है, कहीं पे भी एक नंबर हमारे पास है नहीं। जब हमारे पास नंबर होगा उसके बाद उनके लिए हमें क्या पॉलिसी बनानी होगी वो हम तय कर सकते हैं, लेकिन जरूर उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और जहां तक आपने AAY और BPL वाली बात की, जैसे मैंने शुरू में कहा, हमारा फर्ज है कि जो सबसे ज्यादा मदद के हकदार हैं उनको मिलना चाहिए।
तो इस बजट में सोच समझ के हमने AAY को जो है मदद की। अब आगे जाके जैसे हमारी माली हालत जो है बदल जाएगी, जिस तरह वो नए प्रोजेक्ट्स, पावर प्रोजेक्ट्स हमारे जो ऑन स्ट्रीम आ जाएंगे, उससे हमारी कमाई बढ़ेगी, और कुछ इकदाम उठाए जाएंगे जिससे हमारी कमाई बढ़ेगी। उसमें फिर हम जो BPL कैटेगरी के लोग हैं उन्हें भी जो फायदे गवर्नमेंट की तरफ से मिलने चाहिए उनको भी इनमें शामिल किया जाएगा। Next from that side, please. You can have from this side. गुड इवनिंग सर। सर मेरा छोटे छोटे दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि क्या सरकार एनपीएस एम्प्लॉइज के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम जो है रेस्टोर करेगी, नंबर एक। नंबर दो ये है कि आपने अपने बजट में काफी वेलफेयर मेजर जो अनाउंस किए हैं, क्या जो एक्रेडिटेड और नॉन एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट है उनके लिए भी कोई वेलफेयर मेजर अनाउंस करेगी सरकार, जस्ट लाइक पेंशन, इंश्योरेंस एक्सेट्रा इत्यादि इत्यादि? ना, न्यू पेंशन स्कीम का जो पुराने वाले हैं वो तो ओल्ड पेंशन स्कीम पे हैं, उसमें तो कोई बदलाव नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम के मुलाजिम जो है वो ओल्ड पे रहेंगे, जो नए मुलाजिम लगे हैं वो न्यू पेंशन स्कीम पे होंगे, और इसमें कोई बदलाव लाने की बात नहीं है। जहां तक जर्नलिस्ट के पेंशन वगैरह की बात है, मैं ईमानदारी से कहूँ हमने इसके बारे में सोचा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसे मतलब आइडियाज हैं जो आप शेयर कर सकते हो, उसमें फिर आप देख लीजिए ना कितना बर्डन आप उठाने के लिए तैयार हो और कितना आप हमारे ऊपर डालने के लिए कितना चाहते हो। वहां से क्वेश्चन। फिलहाल प्रेस क्लब की मैंने बात की, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक वाइब्रेंट प्रेस जो है वो कायम हो। जम्मू का प्रेस क्लब चल रहा है शायद, लेकिन श्रीनगर में चल नहीं रहा है। श्रीनगर का प्रेस क्लब दोबारा चले, उसके लिए इकदाम उठाए जाएंगे। और साहब गुड इवनिंग, हकीम इरफान फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स। और साहब you have did this fare rebate for the women, you said zero fare for the women. So we see that the public transport, especially the SRTC, is in shambles, especially when we talk about districts, inter-district connectivity and all. So will it reach to the grassroots really, number one? And number two, the opposition has termed this budget as something which is a love letter to the BJP. Some have called it the deception because of the broken promises of the elections. How do you respond to that? And lastly, also I'll say you started your budget speech at a very pessimist Persian proverb, which is often used when the situation is irreparable. So, do you still consider what you told in Delhi recently, that the current system is a recipe for disaster? Do you still did you see that challenge while preparing the budget? You had so many questions that I don't know where to start. One, SRTC daily ridership is more than 20,000. So it's not as if SRTC buses are going empty. And it is our endeavor to augment that fleet and strengthen SRTC's network. So obviously, ladies, when they're able to travel free, both within the e-bus network and SRTC, we believe that it will benefit them greatly. I don't expect anything but criticism of the budget from the opposition, because that's why they're called opposition. If they were anything else, they would be in government. I mean, it would be difficult for you to find me an example where an opposition has come out from Parliament or the Assembly and praised a budget. Therefore, that's not for me any sort of criteria. I believe that we have presented a budget that is people-friendly. It's a love letter to the people of Jammu and Kashmir. To that extent, if there are people of Jammu and Kashmir who voted for the BJP, then it's a love letter to them as well. But it's also a love letter to the people who voted for NC, voted for Congress, that voted for PDP, and a love letter to the people of Jammu and Kashmir who didn't vote at all. So let's not be sort of unfair and make this as a love letter only to the BJP. It's a love letter to the people of Jammu and Kashmir. Now, on the third thing, I think that proverb was not an expression of helplessness, because there is a balm. If that proverb had been about the absence of a balm at all, then it would have been helpless.
There is a balm, but there are many wounds, which is a fact. I mean, if you go by the numbers that Santosh put in front of you, if you go by the numbers that I put in front of you in the assembly, the fact is that the problems are many, but the resources are limited. And that's why this budget was an exercise in trying to do the maximum good with the least deployment of resources. As our resource position improves, as we move more towards a self-sufficient Jammu and Kashmir, obviously that will change. Now, the question that you asked me, I still maintain that a UT with assembly is by far the worst form of government in the country. I have no hesitation in saying this. I've said this before. I'll say it again. There should only be two systems in this country. Either you have a UT without assembly, or you have a state. Because please remember, union territories were envisaged as territories that were too small to be states. That criteria does not apply to J&K. So that's it. Okay. UNT news after that. First is अंकित भट्ट हूँ TV9 भारतवर्ष से। आज बजट पेश हुआ, आपने एजुकेशन और टूरिज्म को लेकर कई बातें की। सरकार का एक आंकड़ा है, उसमें कहा जाता है कि टूरिज्म जो पिछले 2 साल से है, 4 करोड़ लोग जो है वो जम्मू कश्मीर आए थे टूरिज्म के हवाले से। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जी जी हमने गिनने का तरीका थोड़ा बदल दिया है। अब हम लोगों को नहीं गिनते हैं, हम उनके विजिट्स को गिनते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप आए, शादीशुदा हैं, बिल्कुल, बच्चे हैं, हाँ, कितने? बेटी है एक बेटी, ठीक है। आप 3 लोग हैं। जी जी आप श्रीनगर छुट्टी के लिए गए, वो 3 विजिट हो गए। आप श्रीनगर से गुलमर्ग गए, वो 3 और हो गए। आप गुलमर्ग से सोनमर्ग गए, 3 और। आप सोनमर्ग से पहलगाम गए, 3 और। तब जाके हम उस नंबर पे आ जाते हैं जो नंबर हमने आपको दिया। इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि इतने लोग आए, मैंने कहा इतने विजिट्स हुए। विजिट्स हम डेस्टिनेशन वाइज गिनते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टूरिज्म फिगर्स का भी इसी तरह जो है काउंट होता है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ 4 करोड़ लोग आए, हम ये कह रहे हैं कि इतने विजिट्स हुए, इतने साइट्स पे जो है लोग आए। ठीक है सर, मेरा सवाल ये है कि क्योंकि कश्मीर में टूरिस्ट आ भी रहे हैं, जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी में आ रहे हैं, लेकिन जैसे रजौरी पुंछ है, पीर पंचाल इलाका है, आने वाले समय में गवर्नमेंट किस तरीके से प्लान करने वाली है ताकि टूरिज्म के हवाले से इन इलाकों में ज्यादा से ज्यादा लोग टूरिस्ट आ सके। दूसरा अहम सवाल ये है कि जब आपका मैनिफेस्टो आया उसमें कहा गया कि 200 यूनिट फ्री दी जाएगी। आपकी सरकार बनी, कई बार सवाल भी उठे कि 200 यूनिट कब फ्री मिलेंगे। आज बजट पेश किया गया, आपने बताया कि 200 यूनिट दिए गए हैं AAY कैटेगरी को। क्या जम्मू कश्मीर के जितनी भी जनता है उनके लिए आपने ओपन फॉर ऑल क्यों नहीं किया 200 यूनिट? जहां तक पहुंचना होगा पहुंच जाएंगे। फिलहाल जहां सबसे ज्यादा जरूरत है पहले तो वहां देना चाहिए, आगे जाके। और वैसे भी अगर आप देखें, हम 200 यूनिट से कहीं गुना ज्यादा बिजली जो है मुफ्त दे रहे हैं। अगर आप देखें हम कितने रुपए की बिजली खरीदते हैं और कितना हम हासिल करते हैं, तो वो 200 यूनिट से कहीं गुना ज्यादा है। लेकिन उसके बावजूद हम आज भी अपनी जगह कायम हैं कि सबसे ज्यादा जो डिजर्विंग लोग हैं उन्हें जो है इस 200 यूनिट्स मुफ्त बिजली का फायदा जो है हम पहुंचाएंगे। शुरुआत हमने AAY से की है, आगे जाके जैसे जैसे हमारी माली हालत बेहतर होगी इसका दायरा जो है और बढ़ा दिया जाएगा। जहां तक आपने टूरिज्म के हवाले से बात की, मैं भी मानता हूं कि जम्मू में टूरिज्म का दायरा जो है वो बढ़ाना होगा। इसके लिए पहले जिन इलाकों के हवाले से आपने बात की, वहां की कनेक्टिविटी बेहतर करनी होगी। उन खूबसूरत इलाकों तक हमें सही सड़क पहुंचाने होंगे, और फिर जो हमारा स्प्रेड प्रोग्राम है टूरिज्म का जो है बढ़ाने का, उसके तहत कुछ नए डेस्टिनेशन जम्मू के जो है उसमें शामिल किए जाएंगे। अगला सवाल। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम समीक्षा है, यूनिवर्सल न्यूज टाइमलाइन से।
सर पहले तो आपका शुक्रिया करेंगे कि आज जो महिलाओं के लिए ई बसेस की आज आपने फ्री सुविधा निकाली है, उसके लिए आपका शुक्रिया। मेरा सवाल रहेगा विस्थापित कश्मीरी पंडितों को लेकर। सर आपके मैनिफेस्टो में तीसरा पॉइंट था कि विस्थापित कश्मीरी पंडितों को जो है वो घाटी में वापस लाया जाएगा, लेकिन अगर आज बजट की बात करें तो उसमें जो है विस्थापित कश्मीरी पंडितों को लेकर जो है कोई भी बात जो है वो नहीं है। नहीं, हमने उनके रहन के लिए जो है बजट में जिक्र किया है कि उनकी बेहतरी और जो ट्रांजिट अकोमोडेशन है उसको कंप्लीट करने का जो प्रोजेक्ट है वो हम कर लेंगे। जहां तक वापस ले जाने वाली बात है उसका बजट से कम और हालात से ज्यादा लेना देना है। मैं बार बार ये कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में से कश्मीरी पंडित इसलिए नहीं भागे क्योंकि उनकी माली हालत खराब हुई, वो इसलिए गए क्योंकि उनके जान को खतरा था। जब तक हम उस खतरे को नहीं हटाते हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो पूरी तरह से वापस जाएंगे। इसलिए मिलके फिलहाल यूटी में ये जिम्मेदारी हमारी साझा है, एलजी साहब की भी और इलेक्टेड गवर्नमेंट की। मिलके हमारी कोशिश होगी कि कश्मीर में उस तरह के हालात कायम किए जाएं जिससे कि कश्मीरी पंडित जो वहां से निकल गए वो अपनी मर्जी से वापस जा सके। One question from that side. Thank you, Honorable Chief Minister Saab, for the opportunity. Umar Abdullah Saab, in your budget speech, you expressed your gratitude to Prime Minister, Home Minister, and the Finance Minister. You held many discussions with them before you presented the budget. Were you able to extract enough from them when it came to the funds, or you feel that you could have done more? Question number one. And my second. Go ahead. My second question is, it's something very important about the statehood, because during those meetings you also discussed the restoration of statehood, and after that you spoke to the media. You said that you did raise that issue. Umar Sahab, I just want to know that was there any solid assurance given to you about the time? Any time frame was given for the restoration of statehood? We're working on a time frame, but I don't think it would be appropriate for me to talk about it at this point in time. Needless to say, it is work in progress. That is the answer to the second part of your question. As to the first part of the question, let's be honest. I can always do with more money. No matter how much Government of India gives Jammu and Kashmir, I can always find ways of spending more. But I'm extremely grateful for what we have. So I don't want to in any way sound ungrateful by saying कि ना हमें और मिलना चाहिए था। जितना मिलेगा हम खर्च करेंगे, लेकिन जितना अभी तक मिला है उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से। गुड इवनिंग मिस्टर चीफ मिनिस्टर, मैं विशाल हूँ यूएनए न्यूज एजेंसी से। सर मेरे दो सवाल हैं। पहला स्पेसिफिकली रिलेटेड टू स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स सेक्टर की सर आपने बात की है। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसे आज आपने कहा कि 2 नए स्विमिंग पूल जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है बनाए जाएंगे। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारा स्विमिंग पूल है जिसकी रिवैम्पिंग हो रही है एमए स्टेडियम में, क्या वो इसी बजट में कंप्लीट होगा? दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने कोचेस की जो है स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की बात कही है आज, टू एनहांस देयर कैपेबिलिटीज। सर मुझे उम्मीद है कि जब ये बजट बनाया गया होगा तो जरूर इस पे स्टडी की गई होगी कि आने वाले दिनों में साल 26-27 के दौरान जो हमारे 2 डिपार्टमेंट हैं उनमें से एक डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स काउंसिल जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है, अधिकतर जो है स्टाफ उसका रिटायर हो जाएगा और वो आधा रह जाएगा। क्या ये आने वाले दिनों में आपकी सरकार का कंसिडरेशन रहेगा कि उस डिपार्टमेंट को भी यूथ सर्विस डिपार्टमेंट के साथ मर्ज करके इस सेक्टर को और मजबूत किया जा सके? अब दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले दूं। फिलहाल मर्जर का कोई प्रपोजल मेरे पास नहीं आया है, ना इस पे कोई बात हुई है, और ये मैं पहली मर्तबा सुन रहा हूं कि इस पे हमें सोचना भी चाहिए। फिलहाल इस पे कोई ऐसी बात नहीं आई है जिसपे कि हम सोचें कि यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ जो है मर्ज करना है। जहां तक आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, हम जैसे मैंने बजट स्पीच के दौरान कहा है, हम एक नया जाल स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है पूरे जम्मू कश्मीर में बिछाने पर वादाबंद है। उसमें से 2 चीजों का आपने जिक्र किया, एक श्रीनगर और जम्मू के लिए नए इंटरनेशनल क्वालिटी के स्विमिंग पूल वो कायम किए जाएंगे।
और आपने पूछा कि क्या जम्मू वाला जो है टाइम पे कंप्लीट होगा, बिल्कुल होगा। सर बजट से हटके मेरा और एक सवाल है कि आपको नॉमिनेट किया गया है प्रधानमंत्री द्वारा अगेंस्ट ओबेसिटी कैंपेन में। सर जम्मू कश्मीर में बतौर चीफ मिनिस्टर आप इस कैंपेन को अग्रेसिवली किस तरह आगे लेकर जाएंगे सर? मैं वही डिप्टी सीएम साहब मुझे याद दिला रहे हैं कि मैं खुद खाता नहीं हूं, तो मैं दूसरों को भी शायद ये सबक देने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ही कम खाओ। नहीं ना, अब इसमें हम तो सिर्फ बात ही कर सकते हैं, मिसाल पेश कर सकते हैं। हम अपने आप में एक मिसाल बन के लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आप, मेरी उम्र में 55 साल की उम्र में मैं 20 किलोमीटर दौड़ सकता हूं, तो फिर 20-22 साल के जो लोग हैं उन्हें क्या, उनके पास क्या बहाना है? अगर कि मेडिकली वो फिट हैं, वजन वो कम क्यों नहीं रख पाते? तो चीजें हैं, लेकिन मैं कोई मतलब बड़ा डंडोरा पीट के लोगों के पीछे नहीं दौड़ रहा हूं। सिर्फ कोशिश कर रहा हूं कि एक मिसाल कायम करूं जिसको ज्यादातर लोग फॉलो कर पाए तो अच्छी बात होगी। और सबसे पहले तो मैं अपने मिनिस्ट्री साथियों को कहूंगा कि वो मेरे साथ 5 किलोमीटर दौड़ना शुरू करें, फिर बाकी जम्मू कश्मीर को दौड़वा दूंगा मैं। मैं राइट साइड पे, लेफ्ट साइड को मैं छोड़ रहा हूँ। I am Arun Sharma from Indian Express. Arun Sharma from Indian Express. I have a small question. You, despite UT's limited resources, you have proposed a lot about the welfare schemes. No, your budget is it a zero deficit budget or a deficit budget? Jammu and Kashmir operates in a deficit, and I made this point very clear in the opening part of my budget speech, where I outlined how much we earn and how much we spend. It is a fact that we are very heavily deficit as far as our fund position is concerned. That said, we do generate some amount of revenue of our own that allows us to focus on some social welfare schemes, and that's how we've been enabled with this budget. Which is why I make the point that look, this budget doesn't achieve everything that we set out to do, but it is a start. And as over the next 5 years our economic position improves, we will tackle all the promises that we made. सीएम साहब नमस्ते, मैं पंकज द्विवेदी ग्रेटर जम्मू से। आपने यूटी का पहला बजट पेश किया, इसके लिए आपको मुबारक है। और अगर आपका पोस्ट इलेक्शन के बयान देखे जाएं तो आपने कहा था इलेक्शन जो है इमोशन बेस पे लड़ी जाएगी, डेवलपमेंट बेस पे नहीं। और आज का बजट जो है आप डेवलपमेंट में बात कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच आपने 3 ऐसे मंत्री जो है जम्मू से दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी पार्टी को लगता था कि जम्मू के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उससे पूरा होगा, जिसको आपने भी अच्छे तरीके से प्लेटफॉर्म पे रखा, ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब ने भी रखा। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि उनकी तरफ से एक महाराजा साहब के प्रति ऐसा कमेंट आया है जिसमें हर जगह जो है जम्मू में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसके साथ साथ महाराजा डॉक्टर करण सिंह की तरफ से भी एक बयान आया है। आप कैसे देखते हैं इस कन्फ्लिक्टेड और कंट्राडिक्टरी जो हिस्ट्री है उसको मद्देनजर? कोई कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है ना, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री जो है वो है, और इस पे खुल के जो है कल हाउस में जो डिस्कशन के दौरान बातें हुई, मुझे नहीं लगता इसमें और कुछ कहने की जरूरत है। असेंबली के अंदर जो बातें हुई वो रिकॉर्ड पे है, उससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। ओके सर, इनको माइक दे दीजिए ना। नहीं कोई नहीं, आप माइक ले लीजिए, क्योंकि आपके पीछे जो बैठे हैं वो सुन नहीं पाएंगे। मुख्यमंत्री जी, एक चुनाव आयोग ने लोकसभा के चुनाव की तिथियों में बहुत बड़ी गलती की थी कि कुछ ऐसी तारीखें दे दी जब 2 जो धर्म होते हैं उनकी डेट से उन्होंने उसको वापस लिया। कल जब मैंने आपको लगातार देख रहा हूं, कल मैं आपको सजदा करता हूं जिस तरह आपने एक घूंट पानी भी नहीं पिया, क्योंकि मुकद्दस महीना है और आपने रमजान में रोजा रखा था। शायद आप पहले वित्त मंत्री चीफ मिनिस्टर हैं जो पूरा देश को मैंने देखा, वो 4-4 गिलास पानी पीते थे। बहुत अच्छा किया आपने सर, पीने का बहुत दिल किया ना, नहीं पाया। एंड मुख्यमंत्री जी, दूसरी बात यह है, यहां फिर गलती की
ये एक मुकद्दस महीना है और हम सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा जो देश के बहुसंख्यक हैं वो जम्मू कश्मीर के अल्पसंख्यक हैं। Am I right, sir? मगर बावजूद इसके सबसे ज्यादा अगर रमजान का पूरे देश में विश्व में मनाया जाता है, सबसे ज्यादा संख्या अगर भारत में इसे मुस्लिम साइड की है तो जम्मू कश्मीर से है सर। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या ये बजट का आगे पीछे डेट नहीं हो सकता था? आपको फिर कल जवाब देना। एक मेरी और चीज है, इसी स्थान पर हमारे जम्मू कश्मीर के महामहिम उपराज्यपाल जी ने बहुत बात हुई, भाजपा वालों ने बहुत कहा 4th क्लास के ऊपर जो डेली वेजर है सर, तो महामहिम उपराज्यपाल ने यहीं पर कहा था सर कि हमारे पास बिहार से ज्यादा डेली वेजर है, हम इनको परमानेंट नहीं कर सकते। इट्स ऑन द रिकॉर्ड सर। तो इसमें भी चूंकि अब आप मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय सरकार है, निर्वाचित हुए हैं, साथ ही सर बॉलीवुड की भी बहुत पीछे बात हुई थी सर। बॉलीवुड यानी पंजाब का आना चाहता है, साउथ वाले आना चाहते हैं सर, और वादी कश्मीर के साथ और जगहों का वो निराश हुए हैं। आपके पास आप मुंबई गए थे, शायद आपको कुछ मिला। मेरी इतनी ही जानकारी चाहता हूं, बहुत धन्यवाद। सॉरी, तो आपका दूसरा सवाल क्या था? सर पहला तो था कि नहीं, वो पहला मैं जानता हूं, मैं दूसरे की बात। दूसरा ये था सर कि इस वक्त बहुत मुकद्दस दिन चल रहे हैं। नहीं, वो तो मैं कब, ये जो आपने वो फिल्म के बारे में जो कहा, कोई निराश है, कौन है? सर यहाँ पर जो पिछली हमारे महामहिम ने फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ लाएंगे, यहाँ शूटिंग होगी, मगर सर सब निराश गए। जैसे इंडस्ट्री में सवाए बाबा कौम के सिंगल विंडो में काम हुआ था, उसके बाद इंडस्ट्री में सिंगल विंडो नाम मात्र है सर, वैसा ही फिल्म इंडस्ट्री में हुआ। लोग खफा हो गए, नहीं आ रहे हैं सर। और जबकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्थान है, खास करके जहां कैमरा लगा दे कश्मीर में, वहां ही शूट हो जाता है, मगर वो इनकरेक्ट अभी डिस्करेक्ट है। अब आपकी सरकार, मैं अब समझ गया सवाल आपका। तो दूसरे सवाल का जवाब पहले मैंने बजट की तकरीर के दौरान इस बात का जिक्र किया था कि जो हमारी फिल्म शूटिंग पॉलिसी जो है उसको और मजबूत किया जाएगा। और जो मैं अपनी तकरीर में कह नहीं सका क्योंकि वक्त की कमी रहती है, आमतौर पे हमने देखा है कि बॉलीवुड में जम्मू कश्मीर को प्रमोट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन एक पूरा फिल्म इंडस्ट्री का एक हिस्सा है साउथ इंडिया में जहां जम्मू कश्मीर को लेके ज्यादा एक्टिविटी होती नहीं है। हमारी कोशिश रहेगी कि सदर्न फिल्म इंडस्ट्री जो है, आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री अगर जम्मू कश्मीर आके शूटिंग करना शुरू करे, इससे हमें दो फायदे होंगे। एक तो शूटिंग का यहाँ पे जो इस्तेमाल होगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन वहां फिर टूरिस्ट जो है, आज भी अगर आप देखें तो हमारे ज्यादातर टूरिस्ट गुजरात, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य भारत से आते हैं। साउथ इंडिया से टूरिस्ट जम्मू कश्मीर की कम आते हैं। इन फिल्म शूटिंग से हमारी उम्मीद है कि साउथ इंडिया के टूरिस्ट जो है उनका रुख जम्मू कश्मीर की तरफ हम डाइवर्ट कर पाएंगे। एक ये। दूसरा, आपने ये कहा कि क्या हम इस बजट सेशन को आगे पीछे नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। और इतना मैं जरूर कहूंगा कि इस तजुर्बे के बाद अगले साल अगर मुझे बजट पेश करना होगा, मैं रोजों में पेश नहीं करूंगा ना, मैं बजट का सेशन आगे पीछे कर लूंगा। नहीं तो मैं स्पीकर साहब के सामने हाथ जोड़ के उनको कहूंगा कि 6:30 बजे के बाद सेशन रख के हम शाम को हाउस बिठा देंगे, लेकिन दिन को मैं रोजा रख के बजट इसके बाद पेश नहीं करूंगा। सर, माई सेल्फ आदर्शपाल गुप्ता, पीपी न्यूज लाइव। सर, डेवलपमेंट के नाम पे एग्रीकल्चर लैंड जो जा रही है उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं आप? दूसरा, सुधीर जी के सवाल को मैं आगे बढ़ाऊंगा। प्रेस के लिए आपने बात कही तो आपने एक रिप्रेजेंटेशन भी आपको दी थी। 2019 से लेके अभी तक एडवर्टीजमेंट के रेट्स भी बढ़े, महंगाई आसमान पे चली गई है, प्रेस की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। आपसे मुलाकात भी की थी हमने सोचा था शायद बजट में कुछ चीजें आप सामने रखेंगे, तो उसके बारे में आगे देख लेंगे ना। बजट ही सारा कुछ नहीं है ना, बजट के बाद भी कुछ ऐलानात हो जाते हैं, कर लेंगे कुछ ना कुछ। जहां तक एग्रीकल्चर लैंड, हम भी जानते हैं
और हम भी चाहते हैं कि एग्रीकल्चरल लैंड जो है नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए कम ही इस्तेमाल हो। लैंड यूज कन्वर्जन की जो पाबंदी है वो है, और इतना आसान नहीं है लैंड यूज कन्वर्जन करना, लेकिन अब आबादी भी बढ़ रही है, लोगों को मकान भी बनाने हैं, अपने बच्चों को भी बसाना है, तो कहीं ना कहीं हमें इन चीजों को बैलेंस करना होगा। कम से कम एग्रीकल्चरल लैंड जो है उसका यूज ट्रांसफर हो, ये हमारी हमेशा कोशिश रहेगी। एबीपी न्यूज। सर मेरा नाम अजय है, मैं एबीपी न्यूज से हूँ। छोटा सा सवाल है सर, इस बार आपके बजट से जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने आपका बजट बनाने का लोड थोड़ा कम कर दिया है सर, आपको इस बात की खुशी है या मलाल है? पैसे बच गए, खुशी है। व्यक्तिगत रूप से मेरे पुलिस पे कंट्रोल नहीं है, उसका गम है। आ जाएगा तो अच्छी बात है, दोनों चीजें संभाल लेंगे। उस तरफ से प्लीज। और सीएम सर, मेरा नाम रितेश गुप्ता है, डेली एक्सेलसियर से। सर मेरा सवाल स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग है कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार भी कई कदम उठा रही है और राज्य सरकार की तरफ से भी कई इसी दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम अपने जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम की बात करें, यहाँ पर रिंग को लेकर, जो यहाँ पर स्केटिंग को लेकर रिंग है, उसकी काफी समय से खस्ता हालत है, कई जो एथलीट्स हैं वो जख्मी भी हुए हैं, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। मेरा दूसरा इसके साथ कंसर्निंग क्वेश्चन ये कि जो बेनिफिट्स हमारी नेबरिंग स्टेट्स या अलग अलग राज्यों की सरकारें देती हैं, हमारे यहाँ के एथलीट्स को बेनिफिट नहीं मिल पाते। ये दोनों चीजें आपकी दुरुस्त हैं और इन दोनों चीजों को हम ठीक करेंगे। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बजट में हमने प्रावधान किया है और जवान मंत्री बैठे हैं, काम करने की इनमें वो एक क्षमता है और करेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें, इस साल से ही इस पैसे का सही इस्तेमाल होगा और स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बढ़ा दिया बेहतर किया जाएगा। दूसरी बात भी आपकी सही है, नेबरिंग स्टेट्स के मुकाबले हम अपने एथलीट्स को जो है रिवॉर्ड उस हिसाब से देते नहीं है, इसको एनहांस करने की जरूरत है। मैंने पहले ही ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब से कहा हुआ है, कोई एक प्रपोजल लाए, उस पर हम जरूर गौर करेंगे। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग रिस्पेक्टेड सीएम सर। मैं आमिर सुहेल दिल्ली तस्कीन से हूँ सर। मेरा सवाल जो है वो रिलेटेड टू रैपिड खेल के है, और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सर अभी जस्ट मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। बीजेपी के एमएलए हैं शक्ति राज परिहार, उनका क्वेश्चन था 598 जो उन्होंने हुकूमत से पूछा था कि क्या रेगुलराइजेशन सर्विसेज एनवाईसी, रैबरे खेल और रैबरे ज़राअत और सीआईसी की हो सकती है। सरकार ने इसका जवाब दिया है कि वायलेशन है आर्टिकल 14, 15 एंड 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हालांकि रैबरे खेल का कैबिनेट डिसीजन नंबर 196/12/2017 का है, गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 141 है और आपके मैनिफेस्टो में भी था रैबरे खेल, लेकिन आज सरकार इनकार कर रही है कि रैबरे खेल के जो मुलाजमीन है हम इन्हें परमानेंट करेंगे, रेगुलराइजेशन पॉलिसी में लाएंगे, बिकॉज इट्स वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 15 एंड 16। एंड थैंक यू सो मच सर। मैं चाहूंगा कि आप इस पे जो जवाब देंगे वो हमारे जवाब हमने असेंबली में दिया हुआ है। जहां तक रैबरे खेल के जो उनको मिलता है उसको पिछले साल ही डबल किया गया था। अगर इसमें आगे कुछ जाके करना होगा, डिपार्टमेंट की तरफ से जब प्रपोजल आएगा उस पर हम गौर कर लेंगे। सर मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि इसमें जो लिखा हुआ है कि रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विसेज, तो क्या सर इनके लिए तो ऑलरेडी सर्विस पॉलिसी बनी हुई है, इनका डिसीजन भी जो है वो कैबिनेट नंबर 196 है, गवर्नमेंट आप असेंबली के सवाल का यहाँ सप्लीमेंट्री पूछ रहे हैं सर। ये असेंबली तब हमने जो बात कहनी थी वो कह दी, अब इससे आगे जो डिपार्टमेंट को करना होगा डिपार्टमेंट अपनी पॉलिसी जो है वो तय कर लेगी। मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज बजट से रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछे उस तरफ प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम आकिब खान है, मैं केएनएस कश्मीर न्यूज सर्विस से हूँ। सर एक आरटीआई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 10 लाख से ज्यादा पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं। लगे कि इस बजट सेशन में आपने उन नौजवानों के लिए क्या क्या जो खासकर जो है पढ़े लिखे नौजवान है, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें। दूसरा क्वेश्चन ये, आपके वजीर आजम बनने के कुछ ही दिनों के बाद यहाँ वजीर आजम में बना ही नहीं, माफी चाहता हूँ, इसमें माफी मांगने की बात ही नहीं है ना। वजीर आला बनने के बाद कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पर एक मैच हुआ, लीग हुई, जिसमें भारत के मुख्तलिफ रियासतों के साथ साथ दुनिया भर के क्रिकेट खिलाड़ी यहाँ पर आए। क्या आने वाले वक्त में यहाँ पर आईपीएल के इवेंट भी देखने को मिल सकते हैं?
इंशाल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर बने तो जरूर कोशिश करेंगे कि यहाँ आईपीएल के मैचेस हों। एक स्टेडियम कठुआ साइड पे प्रपोज किया गया है और बीसीसीआई से बात चल रही है कि ठीक उसी तरह का स्टेडियम कश्मीर में भी बने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, ताकि इस तरह के मैचेस जो है एक अच्छे पिच और एक अच्छे स्टेडियम में हम ऑर्गेनाइज कर पाए, ये हमारी कोशिश होगी। और जो पहला सवाल आपका था एम्प्लॉयमेंट को लेके, सारा बजट ही उस पर था। जो डेवलपमेंट की हमने बात की, जो स्टार्टअप्स के लिए हमने बात की, जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हमने बात की, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बात की, ये सब जो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो है एक कोशिश है। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो पाइपलाइन में है, लेकिन फिलहाल उन पे बात करना जो है प्रेमेच्योर होगा। आगे जाके उम्मीद करता हूँ कि मौका मिलेगा तो उस पर बात कर लूंगा। इस तरह आई एम हिमानी कंधारी फ्रॉम जेके न्यूज टुडे। मेरा सवाल रहेगा, हाउ मच टाइम विल जेएनके टेक टू फिक्स इट्स फाइनेंशियल हेल्थ? सर दिस साइड। Oh, there you are. Sorry. मेरा सवाल है, हाउ मच टाइम विल जेएनके टेक टू फिक्स इट्स फाइनेंशियल हेल्थ? I don't have a categorical answer to that. I can't put it in years, 1 year, 2 years, 5 years, except that the problem is endemic. It's not a recent problem. In fact, if anything, the scale of the problem has grown. And there are events that come that then sort of take this even further. So at the moment, just to say that obviously we would like to see Jammu and Kashmir in a position where it is self-sufficient, where it doesn't rely or have to rely on Government of India for the sort of funding that we rely on today. Will we get there? Yes, but it's not going to be easy. Obviously, to get Jammu and Kashmir to that point will take difficult decisions, and it will not be painless. But I believe that it is in the interest of Jammu and Kashmir and in the interest of Jammu and Kashmir's self-respect to be in a position where we are not dependent. Thank you, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। Thank you. सर पंकज शर्मा सर, न्यूज 24 से। सर जो आज बजट आपने पेश किया, आप पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो वादे आपने मैनिफेस्टो में किए थे उसमें से एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया। ना लोगों को बिजली दी, ना बेरोजगारों को रोजगार दिया, ना डेली वेजर को कुछ दिया। ये आप पर आरोप लग रहे हैं कि आपने कौन से वादे हैं जो पूरे किए हैं। सर दूसरा सवाल ये है कि जब ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी कश्मीर घाटी तक, यहाँ के लोगों की चिंता ये है कि उनका रोजगार खत्म हो जाएगा। क्या कोई रोड मैप है कि जम्मू डिवीजन में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए ताकि लोग यहाँ पर आए, डायरेक्ट वहां पे अगर जाए तो रोजगार पर असर ना पड़े? अब जम्मू के हवाले से मैंने पहले भी बात की, दोबारा दोहराने का कोई फायदा नहीं है। हम चाहते हैं कि जम्मू में टूरिज्म जो है उसको बढ़ावा मिले, उसके लिए कई इकदाम पहले से उठाए गए हैं, आगे भी कुछ जो पाइपलाइन में है उनको पूरे किए जाएंगे। जहां तक बजट के वादे हैं, हम कर रहे हैं पूरे ना, बजट के ना मैनिफेस्टो के वादे एक एक करके हम पूरा कर रहे हैं। लेकिन मैंने बार बार ये कहा है ना, लोगों ने हमें 5 हफ्ते की हुकूमत नहीं दी, 5 महीने की हुकूमत नहीं दी, 5 साल की हुकूमत दी। अब रोज आप मुझसे पूछोगे ना कौन सा वादा पूरा किया, कौन सा वादा पूरा किया। आप 5 साल की बात पूछिए ना, जब 5 साल का अरसा पूरा होगा उस दिन बैठिए और मुझसे पूछिए, 5 साल हो गए, बताइए आपने इस 5 साल में क्या किया, फिर मैं बता दूंगा। अब रोज थोड़े ना मुझे ये बताना है ना, ये कोई चेकलिस्ट तो नहीं है ना कि आज मैंने ये वादा पूरा किया, ये पूरा किया, ये पूरा किया। 5 साल के बाद मैं अपना चेकलिस्ट आपके सामने बता दूंगा और आपको कहूंगा ना ये मेरे वादे थे, ये हमारी अचीवमेंट्स हैं। Good evening, Umar Shah. I'm Rajesh Gupta, editor News Till Date. I have a small question. How does the budget address the rising cost of living and inflation, particularly for low-income families? By attempting to put more money in their hands and more money in their pockets. We have tried to provide relief to the weakest sections of society. We can't counter inflation. Jammu and Kashmir on its own can't counter inflation that is prevalent in the entire country. But what we have tried to do is to address, to some extent, the budgetary concerns of the weakest sections of society.
न्यूज 18। सर कोमल सिंह मिन्हास, न्यूज 18 इंडिया टीवी चैनल से। सर आज मुझे लगता है कि जम्मू की वो महिलाएं जो रोज बाहर निकलती है घरों से, और वो लड़कियां जो कॉलेज जाती हैं, प्राइवेट जॉब या सरकारी जॉब करती है, बेहद खुश हुई आपके बजट में जब आपने कहा कि फ्री बस राइड होगी। लेकिन सर आपको याद होगा जब आप मुख्यमंत्री की शपथ लेने थे तुरंत बाद आप किश्तवाड़ पहुंचे थे, जहां पर कई लोगों के घर जले थे। उसी किश्तवाड़ के इलाके में जब बर्फबारी होती है तो आज भी गर्भवती महिलाओं को चारपाई पर लाया जाता है। कई बार ऐसा सुना जाता है कि आधे रास्ते में वो महिलाएं मर जाती है रोड कनेक्टिविटी की वजह से। ये भी एक बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर का है। दूसरा, मेरे एक साथी ने सवाल किया था कि वैष्णो देवी में इतने यात्री आते हैं, कश्मीर में इतने लोग आते हैं घूमने के लिए, लेकिन राजौरी, पुंछ और जो इसके साथ किश्तवाड़ भी एक इलाका है जहां पर पाडर मचेल मंदिर है, जो जहां पर लाखों की संख्या में हर साल लोग जाते हैं, जैसे अमरनाथ यात्रा जाते हैं वैसे वहां भी जाते हैं। वहां की डेवलपमेंट और बुढ़ा अमरनाथ जो इतना बड़ा मंदिर है शिव जी का, वहां पे भी डेवलपमेंट, और जो थाना मंडी के पास जो ज़ियारत है बहुत बड़ी, जहां पर आप खुद भी जाते रहे हैं, वहां पे भी लोग जो देश भर से हैं वो लोग आए। क्या ऐसा आपके मन में है कि आपने वहां पर भी डेवलपमेंट करनी है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि गर्भवती महिलाएं, अब भारत आजाद हो गए कई साल हो गए सर, लेकिन महिलाएं आज भी रोड कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से प्रेगनेंसी में लेबर पेन में मर जाती है। अब हम जानते हैं, मैं मानता हूं कि रोड कनेक्टिविटी पूरी नहीं हुई है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। रोड कनेक्टिविटी के हवाले से आज फिर बजट में जिक्र हुआ, उसके लिए पैसों का इंतजाम किया गया है, चाहे वो ब्लैक टॉपिंग के लिहाज से हो। हमने 4000 किलोमीटर ब्लैक टॉपिंग करने का इस अगले वाले साल में जो है वादा किया है। नए सड़कों को जो है हाथ में लिया जाएगा। एक नंबर्स तो मेरे पास है नहीं, लेकिन ब्रिजेस और रोड्स के हवाले से हमने कुछ इकदाम उठाने पे जो है बजट के हवाले से लोगों से वादा किया है, वो हम कर लेंगे। और ये जाहिर सी बात है कि ये ज्यादातर काम उन इलाकों में होंगे जो फिलहाल डिस्कनेक्टेड, जिनको कनेक्ट करने की जरूरत है, तो वो तो हम जरूर कर लेंगे। जहां तक आपने जम्मू के टूरिज्म के हवाले से बात की, आपने बिल्कुल उन इलाकों की बात की या उन जगहों की बात की जिनको टूरिज्म के नक्शे पे लाना जरूरी है, और उसके लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ मिलके हम ये कुछ सर्किट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो लोग माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए आ जाते हैं उन्हें अब इन सर्किट्स के बारे में पता चले तो हम इनको डाइवर्ट कर पाएंगे। फिलहाल मुझे लगता है कमी इस बात की है कि जानकारी उनके पास है नहीं, इन जगहों के बारे में ये जानते नहीं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि अग्रेसिवली हम इन जगहों की जानकारी जो है यात्रियों तक पहुंचाएं, ताकि जब वो अपने प्रोग्राम या अपने प्लान बनाएं, वो सिर्फ दो दिन का प्रोग्राम ना बनाएं कि हम जी सीधा कटरा आए, ऊपर गए, दर्शन किए, वापस आए और निकल गए। फिर वो जब आते हैं तो 5 दिन 7 दिन का एक पूरा प्रोग्राम बना के, सर्किट बना के उन जगहों की तरफ जाएं जिन जगहों का आपने जिक्र किया। IANS। गुड इवनिंग, सीएम साहब अनिल शर्मा IANS से। मेरा सवाल सिर्फ छोटा सा है। सवाल ये है कि आज जो आपने बजट पेश करा है, ऑपोजिशन का ये कह रहा है कि पीएम के जो विजन है उसे एंडोर्स किया गया है। क्या उस पर आपकी प्रतिक्रिया है? अब अगर पीएम साहब जम्मू कश्मीर को एक डेवलप्ड स्टेट देखना चाहते हैं, तो क्या मैं ये कहूं कि ना ये नहीं होना चाहिए? हम में से कोई ऐसा है जो ये कहेगा ना जम्मू कश्मीर डेवलप नहीं होना चाहिए सिर्फ इसलिए क्योंकि पीएम साहब ने कहा है? अगर मरकज की हुकूमत के इरादे जम्मू कश्मीर के लिए सही हों तो ठीक है ना, हम भी उसी दिशा में चलेंगे। लेकिन ये बजट जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बजट नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की बजट। इस बजट को बनाने के लिए कितनों से मशवरे हुए, एक एमएलए, पहली मर्तबा इस मुल्क में ऑनरेबल एमएलए को बजट फॉर्मेशन के कंसल्टेशन के प्रोसेस में शामिल किया गया, उनसे उनकी राय मांगी गई, उनके सुझाव मांगे गए। इससे पहले 5-6 साल जो बजट पेश हुए पार्लियामेंट में हुए, आपको उस वक्त तो पता ही नहीं होता था कि बजट में ऐलान क्या हुआ। मुझे खुद पिछले 5 साल का 6 साल का याद ही नहीं है कि बजट में जम्मू कश्मीर के लिए क्या ऐलान होता था। आज जम्मू कश्मीर के बजट पे आप लोग तबसरा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, हमसे सवाल पूछ रहे हो। पिछले 6 साल बजट को लेके सवाल कहां हुए? अगर ये प्राइम मिनिस्टर साहब का बजट होता तो यहां सवाल जवाब होता ही नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब तो यहां आके आपके सवालों का जवाब नहीं देते। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा
यहाँ आके आपके सवालों का जवाब नहीं देते। ये जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई हुकूमत का बजट है। अब अगर इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब जो जम्मू कश्मीर के लिए चाहते हैं और हम जो जम्मू कश्मीर के लिए चाहते हैं, अगर कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के लिहाज से कोई हमारी पटरी मिल जाए तो अच्छी बात है ना, जम्मू कश्मीर के लोगों को उसका फायदा है। उस तरफ नीचे 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 इधर इधर मिडल लो। Sir, Amir Tandre, ETV Bharat. Sir, you had talked about harnessing the hydroelectric potential and adding more than 7,000 megawatt. But Chinabali, where all the potential lies, that hasn't got the share of development which it deserves. Nobody is talking about train to Chenab Valley. The existing highways in Shambles, new highway from Chineni to Kishtwar is still a two-lane road. And what options are with you to get those power projects back which center has taken in its control? Connectivity along Chenab Valley is something that needs improvement. It is work in progress. Already improvement on the highway between Cheneni and Kishtwar is going on. Work on some tunnels, road widening. That is an ongoing process. Now, you can't expect at this point in time where right now even between Jammu and Srinagar you don't have a 4-lane highway fully. So to expect that I'll be able to announce 4-lane highway between Cheneni and Kishtwar is perhaps expecting too much. But if you even have a wide enough and a good quality road at this point in time, that's enough. Now, yes, it's a fact that most of the capacity that we have on hydroelectricity is on Chenab River, but we will endeavor to exploit that to its fullest. We listed out some projects that are in the pipeline. I consider it a matter of my own good fortune that these projects were conceptualized and actual work on these started when I was previously Chief Minister. The Chenab Valley Power Development Corporation was set up when I was previously CM. Now, these other projects that we have conceptualized, I hope that during this term of my government, we will start the work on them and complete them at the earliest. Now, on the third thing, what was your third part? On getting the projects back. That's part of ongoing discussions with Delhi, but we haven't had much success. We didn't have much success with Dr. Manmohan Singh's government. They are part of previous government's conversations with Delhi. They're part of our conversations with Delhi. Let's see where we get. But share, it's not getting the share like other areas getting. Which area? कोई नहीं ना, आपके एमएलए हजरात से बात करके कर लेंगे जितना कर सकते हैं. This side. थैंक यू सर. मैं रजत हो रहा हूँ जी न्यूज से. सर, इस समय अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर या किसी भी जगह पर, आम आदमी के ऊपर सबसे बड़ा बोझ जो है वो जम्मू कश्मीर में अगर मैं खास बात करूं तो 3 चीजों का है. एक तो गाड़ियों की जो ईएमआई टोकन मनी जो इस समय इतनी ज्यादा टोकन टैक्स जो लग रहा है, जो रजिस्ट्रेशन फीस, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, और तीसरी जो है वो प्राइवेट स्कूल्स की जो फीस है. क्या रिकंसिडर किया जा रहा है कि इनको किसी तरीके से हम कम कर पाए? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं सर, इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो पेमेंट है वो काफी ज्यादा आ रही है, बिल्स काफी ज्यादा आ रहे हैं, तो उसकी रिकंसिडरेशन, क्योंकि अभी हमें अगर बात करें तो काफी ज्यादा बिल उसको लेकर आ रहा है. जी सर. सॉरी, किस चीज के बिल्स? इलेक्ट्रिसिटी बिल्स. और दूसरा मैंने कहा कि जो इसलिए, अच्छा चलिए मैं तीसरा हिस्सा पहले ले लूंगा, इसलिए तो हम स्मार्ट मीटरों की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट मीटर में जितना आप बिजली इस्तेमाल करोगे उतना ही आपको भरना होगा. तो इसलिए मैं बार बार अपने बजट की स्पीच में, एलजी साहब के खुतबे में, मीडिया से इंटरेक्ट करते हुए मैं कहता हूं ना कि ज्यादा से ज्यादा जहां स्मार्ट मीटर लगेंगे वहां बिजली का सही इस्तेमाल होगा. फिर आप उतनी ही बिजली इस्तेमाल करोगे जितना बिल भरने की आपकी ताकत होगी. और जो सबसे गरीब तबका के लोग हैं उनकी हुकूमत मदद करेगी, जिस तरह हमने बजट में ऐलान किया है. जहां तक प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से आपने बात की, वो तो फी फिक्सेशन कमेटी है जो प्राइवेट स्कूल्स की फीस जो है वो तय करती है. वो अपना काम करते हैं, उसमें रिटायर्ड जज चेयरमैन है. उसमें गवर्नमेंट का दखल जो है कम रहता है. वो फीस तय करते हैं और सिलसिला वहीं पर खत्म हो जाता है. तीसरा आपने रजिस्ट्रेशन, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के हवाले से बात की. इज रजिस्ट्रेशन मोर एक्सपेंसिव? सेम एज अदर्स. सर, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा. हमारा 9% है जो बाकी रियासतों में है. अब सिर्फ ये है,
एक जो बाकी रियासतों में मैंने बीच में मैंने सुना कि जो वो करते हैं, वो बीच बीच में हर 6 महीने या साल में एक बार वो मेला अनाउंस करते हैं, जहां पे वो कहते हैं कि इस महीने के लिए अगर आप गाड़ी इस महीने में खरीद लो तो हम रजिस्ट्रेशन में आपको कंसेशन देंगे। उससे क्या होता है कि फटाफट लोग आके उस महीने गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी के जो डीलर्स हैं उनकी सेल बढ़ जाती है, हमारा जीएसटी की कमाई भी बढ़ जाती है और रजिस्ट्रेशन में थोड़ा सा लोगों को कंसेशन मिलता है। फिलहाल हमने इसका जो है कोई पॉलिसी बनाया नहीं है, लेकिन इसके बारे में मैं सतीश से बात करके देख लूंगा अगर इस साल हम इस तरह का कोई कदम उठा सकेंगे। नेक्स्ट सर, गुड इवनिंग, दिस इज विवेक सूरी फ्रॉम हिमालयन मेल। जम्मू कश्मीर की ह्यूमन रिसोर्स की अगर बात करें, खासकर क्योंकि जम्मू कश्मीर यूटी एक यूटी है, आबादी का 20% हिस्सा यहाँ पर युवा है और हमारा पड़ोसी मुल्क उसका हमेशा से ही प्रयास रहा है कि इसको खोखला किया जा सके। ड्रग्स एक बहुत बड़ी वबा है और लगातार ड्रग्स की यहाँ पर कंसाइनमेंट पकड़ी जाती है। ऐसे में इस बजट के हवाले से क्या आपके प्रयास रहेंगे कि न केवल रिहैब सेंटर्स बनाए जाए बल्कि स्कूल में कॉलेजों की अगर बात करें वहां पर डेडिकेटेड काउंसलिंग सेंटर्स खाली नाम के लिए नहीं बल्कि जो इन यूथ को एड्रेस कर पाए इनकी परेशानी को, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो ड्रग्स हैं इट्स अ बिग नो, क्योंकि हमारी क्लोज सोसाइटी है, टैबू है, खुद हम इस पर बात नहीं करते। अगर जनरेशन नेक्स्ट भी बचाना है तो कहीं ना कहीं इकदाम मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त, ड्रग फ्री बनाना ये हमारी जिम्मेदारी है और हमारी हर कोशिश होनी चाहिए कि इसमें हम कामयाबी हासिल करें। इसमें अच्छी बात यह है कि मरकज की तरफ से भी कई इकदाम लिए जा रहे हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले होम मिनिस्टर साहब ने नॉर्थ जोन चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट्स की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें खासकर एजेंडा यही था कि ड्रग मेनेस को जो है किस तरह टैकल किया जा सकता है। तो एक तो बड़ी नजदीकी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम के साथ जो है हम मिलकर काम कर रहे हैं ताकि एक कोऑर्डिनेशन रहे हमारे और उनके दरमियान और हमारे और जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं, खासकर पंजाब और हिमाचल। दूसरा, तीसरा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए ताकि ड्रग रिहैब की जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सही मायने में बने। इसके हवाले से कई बार हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा सकीना ने असेंबली के अंदर और कई जगहों पे इस पे बात की है। जो रिहैबिलिटेशन और ये ड्रग वो सेंटर्स जो है उनको एक्सपैंड करने की, उनकी तादाद बढ़ाने की और सेंटर्स में साइकियाट्रिक काउंसलिंग वगैरह इस चीज का इंतजाम हो, इन सब चीजों के लिए जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री या हेल्थ मिनिस्ट्री जो है काम कर रही है। इसके साथ साथ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1-1.5 साल पहले एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था कॉम्प्रिहेंसिव, जिसको हमने वादा कहा, वॉर अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन, उस डॉक्यूमेंट को हेल्थ डिपार्टमेंट ने अडॉप्ट किया है और उसको एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट बना के उसको अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर को वाकई ये ड्रग्स मेनेस से जो हम बचा पाए। नेक्स्ट अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आमिर 10 फ्रेट लाइन से। सर 2-3 इंपॉर्टेंट सवाल हैं। एक तो डेलीवेजर्स के रिगार्डिंग, सर पीएचई डिपार्टमेंट में जो डेलीवेजर्स हैं, पीडीडी डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट डेलीवेजर्स के हवाले से मैंने बात की, मैं दोबारा तो कहूंगा नहीं। आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, सर मैंने सबकी बात की ना, मैंने कहा, मैंने पहले ही कहा कि इस पे एसआरओ, सर रिगार्डिंग एसआरओ बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई है। सर पीएचई विभाग में भी काम करने वाले जो डेलीवेजर्स हैं उन लोगों ने अपनी जानें गंवाई और अभी तक उनको कुछ भी नहीं मिला है, इवन कंपनसेशन नहीं मिला। उन लोगों को एसआरओ का कोई भी फायदा नहीं मिला। उनके केसेस तैयार हो रहे हैं, उनके लिए केस कर रहे हैं, लेकिन जहां तक आपने रेगुलराइजेशन के हवाले से आप सवाल कर रहे हैं, मैंने पहले ही कहा है, पहले हम उनका नंबर तय करेंगे, उसके बाद उनके लिए पॉलिसी। बहुत सारे ऐसे डेलीवेजर्स हैं जो बार-बार ये कह रहे हैं कि एसआरओ बनना चाहिए। सर उनके बच्चों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है उसका। मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज एक ही सवाल तक लिमिट रखें। पीछे लास्ट। नेक्स्ट। Good evening, sir. I welcome everybody here. मेरा सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन है कि ट्रैफिक बहुत है जम्मू में भी, श्रीनगर में भी, और बहुत सी गाड़ियां रोड साइड पर लगा देते हैं। ट्रैफिक कंजेशन हर जगह है, बड़ा मुश्किल है। और मैं चाहता हूँ ये तो आप सेंटर से टेकअप करें कि इट वाज पार्ट ऑफ स्मार्ट सिटीज के मेट्रो दोनों सिटीज में, श्रीनगर में भी, जम्मू में भी लगानी है। वो आप वायदा
करें कि आप टेकअप करेंगे? अब मैं टेकअप तो कर सकता हूं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जवाब क्या आएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब शहरों में मेट्रो बनाने पे रोक लगाया हुआ है, क्योंकि जिन शहरों में फिलहाल मेट्रो बना है उनमें भी कई सारे ऐसे शहर हैं जिनमें मेट्रो वायबल ही नहीं है। और जम्मू कश्मीर में अब हम आज ये उम्मीद करें कि श्रीनगर और जम्मू में हम मेट्रो लगाएंगे और वो वायबल होगा, नहीं होगा। हमें मेट्रो को छोड़ के कुछ ऐसे इकदाम उठाने होंगे जिससे कि ट्रैफिक की कंजेशन हम कम कर पाएंगे, लेकिन मेट्रो हमारा इलाज नहीं है। हमारा इलाज शायद इसमें है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क जो है उसको बेहतर करें, और शायद उसमें हमारी हमने एक पहला कदम आज उठाया है, जो कि हमने लेडीज के लिए पब्लिक बसेस में जो है फ्री ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया है। शायद इससे थोड़ा सा अगर ट्रांसपोर्ट में कमी, ट्रैफिक में कमी आएगी तो ठीक है ना, और कदम उठाएंगे। मसूद हुसैन। जनाब सॉरी, रोजे से दिन भर अब जितना मैं बोला हूं उससे कई गुना कम आपने बोला होगा ना। व्हाट इज योर एक्सक्यूज? नहीं, मैं एक आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। आई जस्ट वांटेड टू हैव अ कपल ऑफ थिंग्स ask about them. Number one is that since you are so keen to push tourism from 7%, 14%, how willing are you and to what extent are you willing to pay costs for that? Because I'm talking in political terms, because it has costs. That is number one. No, sorry, come again now. To what extent am I willing to pay the cost of what? Costs for it by pushing tourism to be 7% of GDP, 14% of GDP. It has costs. It may have costs. What sort of cost? Because we are in an ecologically very fragile zone. So what kind of things are we doing? Let me there are two types of tourism. One is mass tourism. One is high-end tourism. I believe that Jammu and Kashmir over time has to move to high-end tourism. That we need to focus less on increasing the number of tourists and focus more on increasing the quality of tourists. That is how we will increase the amount of money that is contributed. So we are not looking to increase the number of tourists coming. Number will gradually increase. We are looking to add more high spending tourists to Jammu and Kashmir, for which appropriate infrastructure and new resorts will have to be created both in Jammu and in Kashmir, and that is what we endeavor to do. I have two small things. Sorry. I have two small things. One is that क्योंकि ये जो हिसाब किताब होता है, बजट का गोशवारा होता है, इसमें ना we already system बना है. So when we are talking of capital expenditure, we essentially indicate that this particular amount is going for the developmental activity. But the larger reality is that it has part of debt return, part of interest payment. That is also part of it. So over the years, what has happened, if we believe that we have 30% of public spending going to capital expenditure, we actually are going almost 33% less. That is overall, as I have seen. Number one part. Number second part is, in the last few years, we have seen that committed revenue, the incomes that we were expecting, haven't come the way they should have. And as a result of which, we were heavily relying on debts. And if you see the graph of debts the last 5 years, they have increased, not decreased. So what is the magic wand that you expect to use this time, that the debts will remain at a manageable level in comparison to the last 10 years? Look, our capital expenditure is increasing. Our repayments are decreasing, which means that more money is actually available for generating or developing capital assets. No finance minister has a magic wand. Madam Nirmala Sitharaman Sahiba doesn't have one in Delhi, and no finance minister in any state or union territory in India has a magic wand. We make do with what we have. And that's why in an answer to an earlier question, I said I can always make do with more. But I'll manage with what I have. So the idea, look, we are extremely conscious
of our responsibility not to load debt on our future generations. J&K anyway has a very high debt level. So none of the initiatives that we have announced today to widen our social blanket or our social net are debt financed. We are not looking to add more debt to finance any of the initiatives that we have taken. Whatever debt we have to take in the ordinary course of government, we will. But our repayments have also gone up quite significantly. In fact, our outstanding, a lot of our sort of off-budget borrowings that we have done, we have been able to more or less clean up those books and write those off. So we have actually cleaned up our finances to ensure that we don't burden future generations with a greater debt than is fair. Thank you. But that's an ongoing conversation that I have with the finance secretary, because as and when we have additional money available that we need to deploy, like this year, we have some savings this year because, like it or not, we had 2 elections. Those elections had election codes. Election codes meant that work got hit. Therefore, some savings were there. We've used those savings to retire high-cost debt and take debt at a lower interest rate. This side, please. Please keep your questions short so that we can accommodate everyone. I'll take 2 more questions because it's almost time to. Sir, one important question that I missed. Sir, that I am asking, sir, I had missed one important question. आप सर दूसरों को दे दीजिए ना, आप दूसरों को दे दीजिए, आपको मौका मिल गया था. सर दानी शर्मा द पब्लिश मेरा न्यूज़पेपर से सर मेरा सवाल जम्मू टूरिज्म को लेकर और आज आपके बजट में भी जम्मू को और ज्यादा एक्सप्लोर करने की बातें कही गई हैं. हर साल श्री माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए करोड़ों की संख्या में लोग माथा टेकने के लिए आते हैं. उसके बाद वो पत्नीटाप, सनासर या फिर नथाटाप वहां पर जाते हैं, लेकिन उनको वहां पर कोई फैसिलिटी नहीं मिल पाती जिसकी वो इच्छा करते हैं. नाइट लाइफ नहीं है, पानी नहीं है, रात को बिजली बंद हो जाती है. लेकिन कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि जो जम्मू में ऑलरेडी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, कुदरत ने जम्मू कश्मीर को सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन लगता नहीं कि जम्मू में जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं उसे और ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत है, क्योंकि जो टूरिस्ट वहां पर आते हैं उनकी बड़ी सारी कंप्लेंट्स वहां पर होती हैं कि उन्हें रोड कनेक्टिविटी नहीं है, पानी नहीं है. और दूसरा सवाल मेरा ये है कि सर बड़ी दुखी से कहना पड़ रहा है कि जब हम टूरिस्ट से पूछते हैं कि जम्मू की लैंग्वेज कौन सी है तो वो सर कहते हैं वो कश्मीरी. तो डोगरी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए सर आपको सरकार क्या करने जा रही है? मैंने आज तक किसी को ये कहते हुए नहीं सुना कि जम्मू की लैंग्वेज कश्मीरी है. डोगरा कल्चर तो पूरी दुनिया में जाना माना जाता है. तो अब पता नहीं आप किससे मिले जो मतलब इतना बेखबर है. मैं तो फिलहाल अभी ऐसे किसी से मिला नहीं हूं, लेकिन चलिए अगर और मतलब इस तरह के लोगों की जो है नॉलेज को बढ़ाने की जरूरत है वो हम कर लेंगे. मैंने खुद बजट के दौरान असेंबली में थी और मुख्तलिफ जो मीटिंगें हुई उसमें कहा है कि जम्मू के टूरिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जरूरत है और बेहतर करने की जरूरत है. हकीकत यह है कि माता वैष्णो देवी के 1 करोड़ से ज्यादा यात्री जो आते हैं उनमें से बहुत कम ना होने के बराबर कहीं डाइवर्ट होते हैं. आपने पत्नी टॉप, नथा टॉप इन इलाकों की बात की. कितने माता वैष्णो देवी के यात्री यहाँ जाते हैं? ना होने के बराबर. पत्नी टॉप में अगर टूरिस्ट जाते हैं तो ज्यादातर जम्मू के ही लोकल जाते हैं यहाँ गर्मी से बचने के लिए. अब इसलिए हमारी कोशिश है कि नए डेस्टिनेशंस यहाँ पे डेवलप हो. मैं फिर वो स्प्रेड के हवाले से बात करता हूँ. हमारी कोशिश है कि जम्मू में 4-5 नए डेस्टिनेशंस ठीक ठाक यहाँ पे एस्टैब्लिश हों ताकि हम माता वैष्णो देवी, ये ना बना बनाया आपके लिए मार्केट है. जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट को प्रमोट करने के लिए हमें बाकी मुल्क में घूमना पड़ता है. जम्मू की टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आपको सिर्फ माता वैष्णो देवी के यात्री को टैप करना है. 1 करोड़ यात्री में से अगर हम 15% ही टैप कर पाए वो 15 लाख है. अगर वो 15 लाख, जिस तरह मैं इनसे कह रहा था, जिस तरह हम गिनते हैं, अगर 15 लाख 4 डेस्टिनेशंस में गए, देख लीजिए कितना, दैट बिकम 60 लाख विजिट्स. तो हमारी यही कोशिश है कि माता वैष्णो देवी के यात्री जो हैं उन्हें अगर हम 10, 15, 20% यहाँ दाएं बाएं नए डेस्टिनेशंस में डाइवर्ट कर पाए, जम्मू की टूरिज्म इकोनॉमी जो है वो पूरी बदल जाएगी. Last question, please. Last. Sir, namaskar. Sanjay Puri from Financial Explorer newspaper.
सर अगर हम जम्मू कश्मीर के एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो हमारे यहाँ पे काफी अच्छे जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो उनका फीस स्ट्रक्चर है काफी ज्यादा है और जो आम घरों के जो गरीब बच्चे हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस में जा सके, तो उनके पास एक ही ऑप्शन है गवर्नमेंट स्कूल्स। गवर्नमेंट स्कूल में हालांकि हमारे पास हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं, लेकिन वहां से कोई रिजल्ट नहीं आता। और अगर हम फार फ्लंग एरियाज की बात करें तो वहां पे टीचर्स की काफी कमी है, तो उसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आपने एक ही ब्रश से तमाम गवर्नमेंट स्कूल के टीचरों को जो है यहाँ पे रद्द कर दिया। ऐसा नहीं है ना कि हमारे गवर्नमेंट के स्कूल्स बिल्कुल बेकार हैं। अब जिस तरह हाथ के 5 उंगली बराबर नहीं है, उस तरह हर कोई बराबर नहीं है। सारे प्राइवेट स्कूल तूफान तो नहीं है। अगर सारे प्राइवेट स्कूल तूफान होते तो सारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो हैं वो आज पता नहीं कहां होते। जिस तरह प्राइवेट स्कूल्स में भी कुछ प्राइवेट स्कूल अच्छे हैं, कुछ मतलब फजूल के हैं, इसी तरह गवर्नमेंट स्कूल्स में कुछ अच्छे गवर्नमेंट स्कूल हैं। कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स को बेहतर करने की जरूरत है और इसलिए मैंने बजट के हवाले से काफी जोर एजुकेशन पे दिया। हमने जो नया इनिशिएटिव K-12 स्कूल्स की बात की, मकसद यही है कि हम स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बेहतर करें। हमने स्मार्ट क्लासरूम्स के हवाले से बात की, हमने आर्टिफिशियल AI लर्निंग के हवाले से बात की। मकसद यही है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेहतर हो और हमारे बच्चे जो हैं बाहर के मतलब जो बाकी मुल्क के बच्चों के साथ जो है मुकाबला कर पाए। एक मतलब कोचिंग सेंटर्स जो है उनका यहाँ पे और ज्यादा नेटवर्क फैले ताकि कंपेटिटिव एग्जाम्स में हमारे बच्चे जो हैं वो कामयाबी हासिल करें, उसकी कोशिश। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज यहाँ है नहीं। मैंने इसलिए बजट के हवाले से ये बात की कि हम एक लेजिस्लेशन के तौर पे यहाँ प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए एक फ्रेमवर्क कायम करना चाहते हैं ताकि यहाँ प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और आए और बच्चों को और अपॉर्चुनिटीज मिले, जिससे कि रोजगार भी बढ़ेगा। Thank you so much, sir. Now I would like to call Principal Secretary Finance for giving the vote of thanks.